Hello student, today we are going to discuss about flower biology and breeding techniques in tomato. So what is the benefit of tomato? Improves vision, prevent gallstones, lowers hypertension. It is good for digestive health, helps to manage diabetes, prevent urinary tract infection, counters the bad effect of smoking, reduce cholesterol level, protect heart. The benefit of tomato. These are benefit of tomato. So first point is introduction of tomato. Botanical name of tomato Solanum lycopersicum. It belongs to family Solanaceae. Genus of tomato is Solanum. Its species Solanum lycopersicum. Its chromosome number 2 is equal to 24, which is introduced in India 19th century by Britishers. It is originated in Peru, South America. Then next point is breeding objective of tomato. So first breeding for earliness, second is breeding for increased fruit yield, then third is fruit quality like large, round, uniform size, deep red color, and increased safe life etc. Breeding for disease resistant like late blight, bacterial wilt etc. Breeding for insect resistant fruit borer, white fly etc. Breeding for abiotic stress, that is cold tolerance, drought tolerance, salt tolerance, low temperature etc. To breed variety for prolonger storage and transportation, for example flavor saver. It is most important objective of this crop to breed variety suitable for processing. The next point is flower biology of tomato. You can see these pictures. Four part of flower of tomato. So five petals is present. Yellow color is petals. Green color is sepals, also known as calyx. Petals also known as corolla. Then ovules. Number of ovules more than 10 to 15 50, 10 to 50. Ovary is single. Stigma, style, stamen is united. It is fruit. The calyx is united and corolla also united, and anther is also united. It is flower of tomato bisexual. Then tomato is self-pollinated crop. Next point is flowering behavior. Anthis. Anthis is start as 6 a.m.
and maximum flower opening till late morning. Dehance 8 a.m. to 11 a.m. एंथिस फूलों की खुलने की क्रिया को, फ्लावर जब ओपन होता है उसकी प्रोसेस को हम एंथिस कहते हैं. देन डिहेंस क्या है? जो एंथर होता है, जो एंथर पॉलन ग्रेन डस्ट करता है, तो एंथर फटने, स्टेमिन फटने की क्रिया जो होती है वो डिहेंस कहलाती है. वो 8 to 11 AM मॉर्निंग में 8 से लेके 11 बजे तक उसमें हो जाता है डिहेंस. रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा. स्टिग्मा कब रिसेप्टिव रहती है? एंथिस होने के 5 दिन बाद 16 घंटे तक ये स्टिग्मा जो होती है वो रिसेप्टिव होती है टोमेटो का फ्लावर में. देख सकते हैं इसमें ये जो नीचे सेपल्स हैं, येलो कलर पेटल्स हैं, इसमें जो स्टिग्मा है वो भी येलो एंथर जो है येलो कलर है, यूनाइटेड है. ये डिहेंस होंगे 8 से 11 के बीच में. जब ये फ्लावरिंग हो जाती है इसके बाद ही डिहेंस होता है इसमें. कल्टीवेटेड टोमेटो और वाइल्ड टोमेटो में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में. दोनों पिक्चर्स हैं. कल्टीवेटेड टोमेटो आर सेल्फ पॉलिनेटेड. pollen shed often occurs before flower open. Then self pollinated lead to homozygosis in breed line or breed row. It is cultivated tomato. So then next process is crossing techniques of this crop. So आप फर्स्ट पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जब क्रॉसिंग करते हैं तो फ्लावर बड जो होता है उसको सिलेक्शन किया जाता है. फ्लावर बड सिलेक्शन किया है इमस्कुलेशन के लिए. देन नेक्स्ट क्या किया है, सेकंड उसमें इमस्कुलेटेड की गई है. इमस्कुलेटेड में एंथर को रिमूव कर दिया गया है. थर्ड पिक्चर में अब सिंगल आपको स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी दिख रही है. सिंगल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एंथर रिमूव हो गया, इमस्कुलेटेड बड हो गया है, बड फ्लावर तैयार हो गया है. इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं पॉलिनेशन का क्रॉसिंग टेक्निक्स में. तो पॉलिनेशन में हम जो ओपन फ्लावर होते हैं उससे हम पॉलन ग्रेन को, एंथर को कलेक्ट करते हैं, उससे हम पॉलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं. और पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग में स्टिग्मा पे डस्ट करते हैं. ये जितने इमस्कुलेटेड फ्लावर बड हैं इन सभी में ये पॉलन ग्रेन जो है वो डस्ट कर रहे हैं. कैमल ब्रश की हेल्प से भी, कॉटन की हेल्प से हम डस्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट ये पॉलिनेशन प्रोसेस डन हो जाता है और हाइब्रिड फ्रूट तैयार हो जाता है. इससे एक हाइब्रिड वैरायटी डेवलप होती है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीडिंग प्रोसीजर ऑफ टोमेटो. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज प्योरलाइन सेलेक्शन, थर्ड इज बैक क्रॉस मैथड, फोर्थ इज पेडिग्री मैथड, सिक्स सिंगल सीड डिसेंट मैथड, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग. इन सभी मेथड की हेल्प से हम टोमेटो क्रॉप में फसल सुधार कर सकते हैं. ब्रीडिंग हेल्प, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड ब्रीडिंग प्रोसीजर की हेल्प से हाइब्रिड सीड बना सकते हैं. देन उसकी प्योरिटी, उसमें प्योरलाइन सिलेक्शन के थ्रू हम जेनेटिकल चेंज, बैक क्रॉस के थ्रू हम रेसिस्टेंट वैरायटी, पेडिग्री, इस मेथड के थ्रू हम वैरायटियों में डेवलप कर सकते हैं टोमेटो क्रॉप का. नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड ऑफ टोमेटो. इसमें क्या है, ब्रीडिंग फॉर रेसिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेस. जितना भी रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी हो तो ये मेथड से हम इजीली कर सकते हैं. इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम लगता है, बट इसका डिमेरिट यही है कि इसमें कॉस्ट बहुत अधिक आता है. तो टोमेटो इज सेंसिटिव टू लो एंड हाई टेम्परेचर फ्रॉम द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन टू रिपेनिंग
and transgenic variety. Transgenic variety developed by Flavor Saver. Flavor Saver was developed for the long shelf life and transportation. इस वैरायटी को लंबे समय के लिए अगर हम स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हम ये फ्लेवर सेवर का वैरायटी बनाया गया है, वो बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से हम उसको डेवलप किए हैं। बायोटेक्नोलॉजी मेथड से फ्लेवर सेवर वैरायटी डेवलप हुई है। जैसे अरिका रक्षक डेवलप्ड बाय ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी टोमेटो F1 हाइब्रिड इन इंडिया। अरिका जो रक्षक वैरायटी जो है ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है। 90 to 100 टन पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन है और 140 to 150 डेज में ये मैच्योर होता है। ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट कौन कौन सा है? लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल बिल्ड एंड अर्ली ब्लाइट, ये इसके लिए रेसिस्टेंट है। सुटेबल फॉर समर, खरीफ एंड रबी सीजन। ये अर्का रक्षस जो वैरायटी जो है ये सबसे ज़्यादा हम कहा इसमें तीनों समर में भी ग्रो कर सकते हैं, खरीफ में भी, रबी में भी। इन तीनों में ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट है, इससे कोई लॉस नहीं होता है। देन थैंक यू।